हेलो डियर एंथोलॉगस व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि अराउंड 1320 टू 1646 के एरा पे बेस्ड होने वाले हैं। एंड बिफोर दिस वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट इन अ प्रीवियस वीडियो लेक्चर विच वॉज अराउंड 1175 टू 1320 AD। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से इट इज़ हु इज़ द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? So the correct answer is option number C. Ghayasuddin Tughlaq was founder of Tughlaq dynasty. And if we talk about his original name or real name, so it was Ghazi Malik. Okay, Ghazi Malik was his original name, and he ruled over from 1320 to 1325 AD. And he was died due to a wooden structure palace collapse. Okay, एक लकड़ी का बना हुआ महल टाइप में था, पैलेस था, वो कोलैप्स हो गया, दैट्स वाई वो मर गया. ओके, कौन? गयासुद्दीन तुगलक. नेक्स्ट इज दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो लेक्चर, बट यहाँ हम लोग थोड़ी रिविजन कर लेते हैं. स्लेव डायनेस्टी वॉज अप टू 84 ईयर्स एंड खिलजी डायनेस्टी वॉज अप टू 30 ईयर्स एंड तुगलक वॉज फ्रॉम 1320 to 1414 AD up to 94 years. I mean longest dynasty ever in Delhi Sultanate. Okay, and if we talk about Sayyid dynasty तो 1414 to 1451 था and 37 years तक था. And Lodi dynasty, last dynasty of Delhi Sultanate, was from 1451 to 1526 AD up to 75 years. Okay, and only Lodi dynasty was from Afghanistan. Otherwise all other dynasties were from Turkey. Okay. Next is longest dynasty is Tughlaq dynasty up to 94 years and shortest dynasty was Khilji dynasty up to 30 years. Okay, you have to keep remember all these things. Second number question says who said Hanuj Dilli Durast? किसने कहा दिल्ली अभी दूर है? So the correct answer is option number A. Nizamuddin Aulia said Hanuj Dilli Durast. That means Delhi is yet far away. Okay, Delhi is yet far away. Nizamuddin Aulia was a Sufi saint of a Chishti order. He said Hanuz Dilli Durast, which means Delhi is yet far away, and these words were said by him for Sultan Ghayasuddin Tughlaq. Okay, there is a reason behind it. एक story है छोटी सी. I'll tell you. Once Ghayasuddin has said to Nizamuddin, when I come to Delhi, I will kill you. Okay. So on this statement of Ghayasuddin, Nizamuddin said this statement, Hanuz Dilli Durast. That means Delhi is yet far away. Okay. As we already know, Ghayasuddin died in the middle of the way due to the collapse of a palace which was made from wood. जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, एक महल टाइप में, वो कोलैप्स कर गई, तो दैट्स वाई उसकी मृत्यु हो गई. तो इसीलिए तभी निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली दूर है अभी, हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली इज़ येट फार अवे. ओके, क्योंकि वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया, बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेड which of the following kings died due to the collapse of a wooden structure? We already have discussed this thing, so the correct answer is option number C, Ghayasuddin Tughlaq. Okay, and this wooden structure was made by his son called Muhammad bin Tughlaq, or his original name was Jona Khan. Okay, Jona Khan was original name of Muhammad bin Tughlaq, and Muhammad bin Tughlaq was his title. Okay, next thing is question number 4 says who among of the following sultans of Delhi Sultanate has been described by the historians as the mixture of opposites? So the correct answer is option number A, Muhammad bin Tughlaq. Okay, Muhammad bin Tughlaq was called the mixture of opposites by historians. Why? There are so many reasons behind it. Okay, I will tell you later. Muhammad bin Tughlaq was the second ruler of Tughlaq dynasty who ruled from 1325 to 1351, and he was called wise fool king, मतलब कि चतुर मूर्ख राजा in the history. Okay, and his original name was Jona Khan, and he died in Thatta, a place named Thatta where he was died, and I guess Thatta is in Pakistan now. Okay, so इतनी information you have to keep remember. Next question number 5 says Muhammad bin Tughlaq transferred his capital from where to where? Muhammad bin Tughlaq ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? So the correct answer is option number B, Delhi to Devgiri, which is in Maharashtra now. Okay, and
As it was difficult for him to control South India from there in Delhi, so he shifted his capital from Delhi to Devgiri और दौलताबाद. देवगिरी को रीनेम करके उसने दौलताबाद रख दिया था, जो कि नियर औरंगाबाद है महाराष्ट्र में. टू कंट्रोल द नॉर्थ इंडिया एंड एज वेल एज साउथ इंडिया. ओके, जो साउथ इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया का पोर्शन है उस दोनों को कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र कर दिया था फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, एंड देवगिरी को रीनेम किया उसने एज दौलताबाद. ओके, तो देखिए यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं. ये है दिल्ली और यहाँ पे नीचे है डाउन साइड अंडर में देखिए, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में है दौलताबाद. ओके, दौलताबाद या देवगिरी. ओके, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है. और ये जो ये पूरा रीजन है, ये पूरा ये ग्रीन कलर से रीजन है विच वॉज तुगलक डायनेस्टी. ये तुगलक डायनेस्टी के कंट्रोल में था, अंडर द कंट्रोल ऑफ तुगलक डायनेस्टी, एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद और देवगिरी विच इज़ इन महाराष्ट्र. ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन. हु इश्यूड अ टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइन्स बिटवीन AD 1329 एंड 1330. तो 1329 और 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के में सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की? तो इट वॉज अगेन मोहम्मद बिन तुगलक. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. देखिए यहाँ पे कुछ मेजर मिस्टेक्स हुए थे उसके मोहम्मद बिन तुगलक के, दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड वाइज फूल किंग. ओके, सो फर्स्ट मिस्टेक ऑफ हिम इज taxation in the Doab fertile region between the Ganga and Yamuna river. I will tell you what is Doab. So it is the Yamuna river and it is Ganga river. Okay, so beach ka portion, the portion between these two rivers is called Doab region, which was very fertile. Okay, so you have to keep remember he increased the tax in Doab region. Okay, but his timing was not right. द दोआब रीजन वॉज फेसिंग अ सेवरे फेमाइन. बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमाइन झेल रहा था वो, बहुत ज़्यादा मतलब सूखा बाढ़ इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स. तो मेनी पीजेंट्स, जो भी बहुत सारे किसान वगैरह थे, पीजेंट्स फार्मर्स वगैरह थे, हैड टू मूव अवे फ्रॉम द रीजन, क्योंकि उसने जो टैक्सेशन इम्पोज कर दी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी. तो सम ऑफ देम ऑल्सो रिवोल्टेड, कुछ ने क्रांतियाँ भी की, कुछ ने रिवोल्ट्स किए. सो द किंग हैड टू विदड्रॉ इट्स ऑर्डर. तो उसने जो ऑर्डर दिए थे टैक्सेशन जो इंक्रीमेंट करने के इन दोआब रीजन, उसने विदड्रॉ कर लिए, वापस ले लिया था. ठीक है, तो ये मेजर ब्लंडर थी उसकी फर्स्ट. कौन सी? टैक्सेशन इन द दोआब रीजन. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट सेकंड, तो सेकंड उसका जो ब्लंडर मिस्टेक था which we have already discussed, it was shifting of capital from Delhi to Devgiri or Daulatabad. The Sultan thought that if he shifted the capital from Delhi to Devgiri, which he renamed as Daulatabad, he could control the empire better. Okay, he also thought he could be safe from the Mongols' raid. He ordered the entire population of Delhi to move to Daulatabad. This angered मेनी पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए, बहुत सारी चीज़ें उनकी. अब किसी ने कहाँ पे अपनी, जहाँ दिल्ली में वो लोग रहते थे पहले, वहाँ पे अपने घर वगैरह बना के रखे थे, तो आप अचानक से कोई ऑर्डर आ जाता है कि चलो आप अपना बोरिया बिस्तर लेके उधर से निकलते बनो, तो ऐसा किसी को भी तो गुस्सा आएगा. ठीक है, तो दिस एंगर्ड मेनी पीपल बट दे हैड टू मूव, लेकिन उनको ऑर्डर तो फॉलो करना ही था. देन आफ्टर दे मूव्ड द सुल्तान रियलाइज्ड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू लुक ओवर द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स. जब वो लोग मूव कर गए तो सुल्तान को लगा, मतलब कि ये मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि दिस वॉज वेरी रॉन्ग थिंग या वेरी रॉन्ग डिसीजन मेड बाय हिम. ओके, क्योंकि वो जो नॉर्थन फ्रंटियर था, मतलब नॉर्थ एरिया को था, वो नहीं देख पाता, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. ओके, सो ही ऑर्डर्ड द पॉपुलेशन टू मूव बैक टू दिल्ली. अब मतलब दिल्ली से पहले दौलताबाद आ गए, फिर दौलताबाद से वो बोल रहे कि जस्ट प्लीज़ मूव बैक टू दिल्ली अगेन. ओके, दिस अफेक्टेड द प्रेस्टीज ऑफ द एम्पायर. ओके, ऑब्वियस सी बात है कि एम्पायर की प्रेस्टीज को तो ये इफेक्ट करना ही था. तो ये भी एक ब्लंडर उसकी मिस्टेक थी. दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड एज फूल, वॉइस फूल किंग. ओके, थर्ड मेजर ब्लंडर मिस्टेक वॉज टोकन करेंसी. ओके, टोकन करेंसी वॉज लाइक सिम्बॉलिक करेंसी. ओके, there was a worldwide shortage of silver during his reign. Okay, तो so the Sultan issued brass and copper coins. उसने कांसे और तांबे के सिक्के चलाना शुरू कर दिए क्योंकि सिल्वर कॉइन्स की शॉर्टेज हो रही थी. They had the same value as silver coins. तो ये तो बहुत बड़ी, मतलब कि बहुत जैसे छोटी बात होगी कि जैसे सिल्वर कॉइन्स के इक्वल कर दिया ब्रास एंड कॉपर कॉइन्स को. They could be exchanged for silver coins in the royal treasury. Okay, the design on these coins were simple and brass and copper were cheap.
ओके। सो द ऑर्डिनरी क्राफ्ट्समैन, जो लोकल क्राफ्ट्समैन होते थे, वो भी उस चीज़ को जो सिंपल सी डिज़ाइन होती थी वो अपने घर में ही ढालने लग गए सिक्कों को, ओके। could make them very easily. Money lost its value. Obvious सी बात है, जब ऐसा होगा तो money will lost its value and the royal treasury flooded with brass and copper coins. Okay, जो सुल्तान की treasury थी was flooded with brass and copper coins, and these are some kind of mistakes was made by Muhammad bin Tughlaq. Okay, so इतनी informations you have to keep remember. Okay, next. Badayuni commented that the king was freed from his people and they from their king on Muhammad bin Tughlaq's death. जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो बदायूनी एक राइटर हैं, वो कहते हैं कि लोगों को मतलब प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई. द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग. ओके, एंड नेक्स्ट, ही वॉज नॉट एज क्रेजी एज यू थिंक. ओके, आपको अब इन सारी चीज़ों की बात लग रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा क्रेजी था, बट ही वॉज नॉट. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी एंड फिजिक्स. स्पेशली देयर वॉज nobody to match him in calligraphy. These kind of writings are calligraphy. Okay, like other great kings, he was an excellent warrior. Okay, next, Muhammad bin Tughlaq dreamed of conquering Persia. Okay, that is Khorasan, and expedition, and China, that is Karachi expedition. When he tried to execute these two projects, इट मेट डिज़ास्टरस रिजल्ट्स. ओके, उसने आर्मी बहुत सारी लगा दी थी और बहुत ज़्यादा उसको लॉस फेस करना पड़ा था, तो बहुत ही डिज़ास्टरस रिजल्ट इसके आए हुए थे. एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज, वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वॉज जेनरस, हेम्बल एंड काइंड, ही वॉज नैरो माइंडेड. वो बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड भी था, स्टबबर्न मतलब जिद्दी भी था, एंड मोस्ट क्रूएल भी था. ही गेव गिफ्ट्स टू ऑल दोज होम ही लाइक्ड. ओके, जिसको जिसको पसंद करता था उनको गिफ्ट्स देता था, बट पुट टू दैट हु अपोज्ड हिम. ओके, और वो उन लोगों को फांसी भी दे देता था या मार भी देता था जो लोग उसको अपोज करते थे. ओके, ही killed to that people who opposed him. Okay, next, question number 7 says, Ibn Battuta visited India during the reign of. Ibn Battuta ने भारत का दौरा किसके शासनकाल में किया था? So the correct answer is option number A, Muhammad bin Tughlaq. Okay, and Ibn Battuta, if we talk, he was a famous Moroccan traveler and his famous book name is Kitab ul Rehla. Okay, and next information देख लेते हैं. Question number 8 says, which Sultan of Delhi established an employment bureau, a charity bureau and a charitable hospital? तो ऐसी इन तीनों चीज़ें की स्थापना किसने की थी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक. ओके, मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था फिरोज शाह तुगलक. ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. जौनपुर डिस्ट्रिक्ट was established by फिरोज शाह तुगलक. ओके, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था बाय फिरोज शाह तुगलक इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिज कजिन ब्रदर दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक. क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नेम था वो था जौना खान. दैट्स वाई फिरोज शाह तुगलक established a district named Jaunpur in remembrance of Muhammad bin Tughlaq, as Muhammad bin Tughlaq was named as Jona Khan. I mean originally अगर देखा जाए original name of Muhammad bin Tughlaq was Jona Khan. Okay, next, Firoz Shah Tughlaq, the Sultan of Delhi, established Jaunpur district in UP. Okay, in memory of his cousin brother Muhammad bin Tughlaq, whose given name was Jona Khan, and that's why he established a Jaunpur district. बर्नी रोट. बर्नी एक स्कॉलर थे या फिर आप ऑथर कह सकते हैं. तारीख ए फिरोज शाही एंड फतवा ए जहानदारी. ओके, फतवा ए जहानदारी और तारीख ए फिरोज शाही वॉज रिटन बाय बर्नी. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. हु वॉज द दिल्ली सुल्तान टू इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. It is very important questions for your exam point of view. Firoz Shah Tughlaq was the Delhi Sultan to impose jizya tax on Brahmins. Okay, there were 4 types of taxes, which was kharaz, jizya, khams and zakat. Okay, and here are some informations. देखिए, फिरोज शाह तुगलक introduced the taxation system based on the Holy Quran. First one is kharaz. It was the land tax which was equal to the 1/10 of the produce of the land. Okay, second one is jizya, was levied on the non-Muslims. ये non-Muslims से लिया जाता था in the kingdom.
Third one is zakat, was a tax levied on the property and it was equal to 2% of the value of the property. Okay. Khams, last one, was a tax levied on the booty captured during the war and it was 1/5 of the total value of such goods captured during the war. जो भी लैंड एक्वायर की जाती थी उस पर अगर टैक्सेशन 1/10 होता था तो वो खराज में होता था, और जो भी लैंड एक्वायर की जाती थी या गुड्स या तो फिर जो भी वॉर में गुड्स एक्वायर किए जाते थे उसमें खम्स लगता था. एंड जक़ात वाज ऑन द जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती थी मुस्लिम्स की जो थोड़े से रिच होते थे उन पर लगती थी. ठीक है. एंड जजिया वो नॉन मुस्लिम्स पे लगती थी. क्वेश्चन नंबर 10 सेज हु हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया. भारत में किसने सबसे बड़ा नहरों का जाल बिछाया था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक. ओके. इसने जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद ये सब कुछ सिटीज़ की भी इस्टेब्लिशमेंट की है. ओके. फिरोज शाह तुगलक ने. तो फिरोज शाह तुगलक इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इरीगेशन सिस्टम इन इंडिया. सिंचाई की जो व्यवस्था होती है या कैनाल सिस्टम, डैम्स वगैरह इसने बहुत सारे बनवाए थे. ओके. तो for channelizing rivers of provide water through canals and he started a water tax named Haq-e-Sharb. Okay, what was the name? Haq-e-Sharb. Okay. Next is who was the Delhi Sultan at the time of the establishment of the Vijayanagar Empire. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुहम्मद बिन तुगलक. ओके. And here are some informations. In 1336, the Vijayanagar Empire was founded by Harihar and Bukka, and in 1336 to 1646 ये टाइम ड्यूरेशन था ऑफ विजयनगर एम्पायर. ओके. नेक्स्ट इज देखिए यहाँ पे ये है विजयनगर एम्पायर, यहाँ पे ये चीज़ है और उसके ऊपर में है बहमनी सल्तनत. ओके. एंड ये इसकी लोकेशन आपने देख ली इन मैप. 12 number question says in how many dynasties विजयनगर एम्पायर was divided. विजयनगर साम्राज्य कितने भागों में या कितने वंशों में बटा हुआ था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4 डायनेस्टीज में डिवाइडेड था. एंड द नेम्स आर संगमा डायनेस्टी, सेकंड इज सलुवा डायनेस्टी, थर्ड इज तुलुवा डायनेस्टी, फोर्थ इज अराविडो डायनेस्टी. ओके. एंड हियर आर सम टाइमिंग्स ऑफ संगमा डायनेस्टी, सिलुआ डायनेस्टी, तुलुआ डायनेस्टी एंड अराविडो डायनेस्टी. ये अराउंड 1336 टू 1646 तक था विजयनगर डायनेस्टी. ओके. एंड आफ्टर दिस द टॉपिक्स लाइक बहमनी एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, सैयद एम्पायर, लोधी एम्पायर. So related questions we will discuss in next video. If you find this video informative, just let me know in the comment section. Then I will provide a next part of it. Okay. And this question is for you. It says during whose reign did King Taimur Lung invade India? किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था. सो द करेक्ट आंसर यू हैव टू गिव इन द कमेंट सेक्शन. ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. फॉर फ्री PDF you have to join our Telegram channel Indologos. Okay.